ایس پی آر نے کہا ہے کہ آج صبح پاکستان نے ایران میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر موثر حملہ کیا ہے۔ حملے میں ڈرون، راکٹس اور اسٹینڈ آف اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آپریشن بہت احتیاط سے کیا گیا تاکہ بڑے پیمانے پر نقصان نہ ہو۔ آپریشن کو مرگ برسر مچار کا نام دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا یہ بھی بتانا ہے کہ حملے میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا وہ بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور کسی بھی مہم جوئی کے خلاف ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عوام کی حمایت سے تمام دشمنوں کو شکست دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ آج صبح پاکستان نے ایران میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر موثر حملہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا کہ حملے میں ڈرون، راکٹس اور اسٹینڈ آف اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان کبھی اپنی خود مختاری کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یو این چارٹر کے اصولوں میں رکن ممالک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری شامل ہے۔ ایران برادر ملک ہے اور پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے عزت اور محبت رکھتے ہیں۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ ایران کی جانب سے فوری اقدامات نہ کرنے پر جوابی کارروائی کی گئی۔ وہ نیوز بریفنگ دے رہی تھیں۔ Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists, calling themselves Sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence of the presence and activities of those terrorists. However, because of lack of action on our serious concerns, these so-called Sarmachars continue to operate against Pakistan with impunity. پاکستان کے ایران کے حملے کا جواب دینے پر سفارتی امور کے ماہرین نے کہا ہے کہ ایران کو پیغام بھی مل گیا اور پاکستان نے اس کی غلط فہمی کو دور بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کر کے غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے ایران کے حملے کا جواب دفاعی اور سفارتی امور کے ماہرین نے بروقت کارروائی قرار دیا ہے۔ سابق سفیر شہری رحمان نے کہا کہ ایران کو پیغام مل گیا ہے کہ آپ پاکستان کی حدود پر اس طرح قدم نہیں رکھ سکتے۔ ایران کو اب ان کا میسج مل گیا، ان کو جواب مل گیا کہ آپ پاکستان کی سوورنٹی پر اس طرح نہیں آ کے قدم رکھ سکتے۔ اور سمپل سی بات ہے جی کہ اب تہران ہی نے سوچنا ہے کہ کتنے فرنٹس انہوں نے کھولنے ہیں، کیونکہ ہم ایک کبھی ان کے ساتھ سوائے امن کے اور دوستی کے کسی اور چیز کے خواہاں نہیں رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی نے کہا ہے کہ ایران نے ہماری امن کی خواہش کو مس کیلکولیٹ کیا۔ ایران نے جو ہے ہماری امن کی خواہش کو مس کیلکولیٹ کیا۔ اس موقع پہ پاکستان نے انتہائی کیلکولیٹڈ سرجیکل اور پریسیشن اسٹرائکس کی ہیں۔ مستقبل میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، عالمی قوانین اور جو سفارتی ضابطے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دفاعی تجزیہ کار قمر چیمہ کا کہنا تھا کہ ایران کو مڈل ایسٹ میں ناکامیاں مل رہی ہیں، اس اقدام سے اپنا اعتماد بحال کرنا چاہتا تھا۔ مس کیلکولیٹ کر بیٹھا تھا کہ جو ایران کو مڈل ایسٹ میں ناکامیاں مل رہی ہیں، شاید وہ خطے میں اپنا ایک اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اگر پاکستان یا سیریا یا عراق میں شاید اگر کچھ ایسا کرتا ہے تو شاید ایران کے اندر اس کی جو لیڈرشپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ ہم نے اپنا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ایکسرسائز، ہم نے ایران کو یہ میسج دیا ہے کہ بھائی آپ ہماری عزت کریں گے تو ہم آپ کی عزت کریں گے۔ حسن عسکری رضوی نے کہا کہ ایران کے خلاف پاکستان کے اقدام کو بروقت جواب ضروری تھا۔ پاکستان جو ہے وہ سیریا اور عراق سے مختلف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا پیغام اس کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان نے پہلا آپشن جو ہے ڈپلومیٹک استعمال کیا ہے، اور تیسرا میسج یہ ہے کہ اگر ڈپلومیٹک راستے مسائل کو حل نہیں کرتے تو پھر پاکستان کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنے علاقے کا مؤثر تحفظ کر سکے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی نے کہا کہ ایران کو حملے سے پہلے پاکستان کو پیغام بھیجنا ضروری تھا، ہم نے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ میسج اس وقت بھیجنا اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان کی بنیادی رسپانسبلٹی ہے اپنی ٹیریٹری کا دفاع اور سیکورٹی۔ ہم نے ان دا پاسٹ زیادہ ریسٹرینٹ دکھائی ہے، تحمل کا مظاہرہ کیا ہے کمپیئر ٹو
Iranians. ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान ने कहा है कि भारत और ईरान की जानिब से ये सोचा गया कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भारत का जवाब दिया था तो भारत खामोशी से बैठ गया था। तो मिलिट्री रिस्पॉन्स वारंटेड था कि शायद मिलिट्री रिस्पॉन्स के बगैर चीजें सेटल नहीं होगी। दूसरा रीजन में आपने कम्युनिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान नॉट अ बनाना रिपब्लिक, कि कोई उठे इधर से आके सॉवरेनिटी को वायलेट करे, देन वी आर अ न्यूक्लियर पावर। तो हमारे लोग शहीद हुए, इसमें बच्चे शहीद हुए, 3 है बलूचिस्तान के लोग हमारे लोग हैं, तो क्या हम चूड़ियां पहन के बैठे हुए? तज्जियाकारों की राय में पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। ईरान को खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान का साथ देना होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी खबर यह है, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 2 बजे बुला लिया है। ज़रा के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और पाक ईरान कशीदगी ज़ेर गौर आएगी। इसी बारे में बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वकार सकीद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान और ईरान की जो कशीदगी है इसके बायस जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ है उन्होंने अपना जो डेविस का जो दौरा था उसको मुख्तसर किया है, और जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो आज शब जो है वो वापस पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और उसके बाद कल दिन 2 बजे जो है वो उनकी जानिब से वफाकी काबीना का एक हंगामी इजलास जो है वो तलब किया है। जबकि इसके बाद कल ही जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि 2:45 बजे जो है वो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो भी तलब किया गया है। जबकि जो पाकिस्तान की जानिब से आज सुबह जो ईरान के सूबे में जो कार्रवाई की गई है, जो जवाबी कार्रवाई थी, उससे मुतल्लिक जो निगरान काबीना है उसको एतमाद में लिया जाएगा। जबकि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उसमें जो तीनों जो सर्विसेज चीफ हैं वो भी शरीक होंगे। इसके अलावा वज़ीर दिफा, दाखिला और इसके अलावा जो दीगर मुतल्लिका हुकाम है वो इसमें शरीक होंगे। जबकि जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो है वो एक ब्रीफिंग दी जाएगी कि कैसे पाकिस्तान जो है वो अपने यानी सफारती जो हदूद हैं उसके मुताबिक वो कैसे रद्द अमल जो है वो पॉसिबल दे सकता था और पाकिस्तान का रद्द अमल कैसा रहा। उसके अलावा जो दीगर दोस्त ममालिक की जानिब से जो इस हमले के बाद जो दरअंदाजी के बाद जो राब्ते किए गए थे उससे मुतल्लिक भी निगरान काबीना को और उसके बाद कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास है उसमें आगाह किया जाएगा। इसके अलावा जो कौमी सलामती, शुक्रिया आपका वकार, आपने तफसीरन आगाह किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि 2017 में मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने की वजह से वज़ारत उज़्मा से निकाल दिया गया। अगर मुझे ना निकाला जाता तो कोई बेरोज़गार ना होता। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि हर घर खुशहाल होता, लेकिन 5 जजेस ने बैठकर नवाज शरीफ को फारिग कर दिया। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर आज भी 100 रुपये का होता, काश्तकार खुशहाल होता, बिजली और गैस सस्ती होती, रोटी और नान आज भी 4 रुपये का मिलता, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता और सब पासपोर्ट की इज्जत होती। मैं आपको बताना चाहता हूं 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वज़ारत उज़्मा से सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी वो जब निकाल दिया गया, ना निकाला जाता 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। ना निकाला जाता, अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता, आज हाफिजाबाद के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता, सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि जब कायदे आवाम को इक़्तिदार मिला तो उन्होंने आवाम के लिए काम किया। आज भी पाकिस्तान के आवाम रोटी, कपड़ा और मकान का मुतालबा कर रहे हैं। आपसे वादा है कि वज़ीर आज़म बनाएं, बेरोज़गारी ख़त्म करूँगा। नौशहर फ़िरोज़ में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। नौशहर फ़िरोज़ में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि नौजवानों को यूथ कार्ड के ज़रिए कर्ज फराहम करेंगे। जो 10 नुकात अवामी मुआशी मुआहिदा है, ये गुर्बत का मुकाबला करने के लिए मंसूबा है, ये बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए 10 नुकाती एजेंडा है, ये महंगाई का मुकाबला करने के लिए 10 नुकाती एजेंडा है। और मेरा आपसे वादा है कि आप मुझे अपना वजीर आजम बनाएं और मैं इस तमाम जो 10 नुकाती एजेंडा है
इस पे अमल दरामद करूंगा, गुर्बत का खात्मा करूंगा, बेरोजगारी का खात्मा करूंगा और इस महंगाई का भी हम मिलके मुकाबला करेंगे। अभी आपको बताएं कि सी गार्ड मश्क का अख्ताम हो गया। अख्तामी तकरीब से खिताब में वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी, रेल एडमिरल शफात अली खान ने खिताब करते हुए मश्क की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा है। तफसील के लिए रिपोर्ट। पाक बहरिया की सी गार्ड मश्क 2024 इख्तिताम को पहुंची। इख्तितामी तकरीब से खिताब में वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी का कहना था कि ऐसी मश्क का सिलसिला जारी रहना चाहिए। जंग का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है, मैरी टाइम जोन में सिक्योरिटी की जरूरत है। पाकिस्तान नेवी अपना किरदार बखूबी निभा रही है। The wholehearted participation तमाम स्टेक होल्डर्स ने एक्सरसाइज में पूरे दिल से हिस्सा लिया है। हमारे मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए ये मशक़ें बहुत अहम हैं। हमारे साहिल समंदर और समंदरी सलामती के लिए ये मशक़ें ज़रूरी हैं। ये मशक़ साहिली सलामती की पहली मशक़ है। रियर एडमिरल शफात अली खान का कहना था कि पाकिस्तान की 95% तिजारत समंदर से होती है। सी पैक की वजह से इसकी अहमियत बढ़ गई है। मशक़ से मजीद कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाएगा। गरचे आप इस अमर से बखूबी आगाह हैं, मगर इस हकीकत का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान की तकरीबन 95% तिजारत समंदर के रास्ते से होती है। इस ज़मन में पाकिस्तान की समुंदरी गुज़रगाहें और बंदरगाहें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी लिहाज से भी इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। सी गार्ड मश्क की इख्तितामी तकरीब में पाक बहरिया के सीनियर अफसरान की कसीर तादाद मौजूद थी। कराने में कामयाब हो गए और आज भी खुल गई और इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा। सर दो चीज़ें बताइएगा। एक तो ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि जो FWO के प्रोजेक्ट थे लाहौर के अंदर जो खास तौर पर वो SL3 है उसमें थोड़ी ताख़ीर है, और जो CBD के अंडर NLC का काम था वो NLC का पंजाब गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, वहाँ पर थोड़ी ताख़ीर है। और दूसरा ईरान ने दस्तंदाजी की जो पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितनी ज़्यादा ठंड है और फॉग है उसकी वजह से कंक्रीट हम नहीं कर पा रहे, कई चीज़ों में सॉल्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज एक टेम्परेचर चाहिए होता है आपको, और वो टेम्परेचर जो है वो जब अवेलेबल ना हो तो उसके बाद आपका वो सारा का सारा मटीरियल ज़ाया हो जाता है अगर आप वो का यूज़ करेंगे। उसकी वजह से डिले ज़रूर है जो ह्यूमनली हम किसी के बस की बात नहीं है। NLC भी और FWO भी दिन रात काम कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन से पहले SL3 को पब्लिक के लिए खोल देंगे। ईरान की जहाँ तक हमले की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है, पाकिस्तानी फौज ने, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क अगर सोचेगा तो इसी तरह उसको एक के बदले में साथ ही पड़ेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जिस तरह आपने बताया कि 5 से 6 साल से ये मनसूबे बंद थे, तो अब ओपन हो गए, जैसा कि गुलबर्ग में इसी तरह का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना, संतरागढ़ में बना और अब ये ताजपुरा में बना है। तो एक तो जो गुलबर्ग वाला इलाका वहाँ पे 5 लाख रुपया फीस है और यहाँ पर और संतरागढ़ में 2-2 लाख रुपया फीस है। मुझे ये बताएं कि ये इस तरह के इलाके नहीं है कि ये 2-2 लाख रुपया खर्च कर सकेंगे, तो इसमें कोई रियायत दी जाएगी आपकी तरफ से या किस्तों में कर रहे हैं? 2 लाख को भी किस्तों। और इसके अलावा कितने मजीद बनेंगे? टोटल 11 है। अच्छा सर, चाइनीज डेलीगेशन जो इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स थे उनको आपने अपनी दावत दी कि वो पंजाब में आए, स्मोक के तदारुक के लिए कोई अपनी स्टडी करें। डेलीगेशन ने आपके साथ मीटिंग भी की, अब इस मीटिंग का क्या लाया अमल निकला है, क्या रिपोर्ट उन्होंने आपको पेश? उन्होंने कहा हमें वापस चाइना जाने दें और वापस चाइना जाके तो हम आपको हमें डाटा कुछ चाहिए, डाटा एनालाइज करेंगे और उसके बाद वो डिटेल में हमें फिर बताएंगे। और लाहौर में कितने टावर एंटी स्मोक के लिए लगाए जा रहे हैं? पहला वाला तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 15